morning, everyone. So, again, the same chapter, but the second exercise, right? Same chapter, and the exercise is 7b. Exercise is 7b. So, size is 7b. Oh, then. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे. Now we have much more idea about the percentage, right? Percentage symbol I told you, Yes. right? Abbreviation I told you, P dot C, and percentage की value क्या होती है, that I told you 1/100, right? ये सारा कुछ हमने पढ़ा कि कैसे किसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालेंगे. So we did so many questions. Now we are doing the sums based on the application of percentage. Okay? Right? Now the questions will be in the form of statements, and from those statements we will derive what to do. Okay? How to solve those questions having statements. Now we're starting with the question number 1. What percent of a day is the time duration of 3 hours? What percent of A day a day, is तो The इसको time रख करते हैं, duration. इसकी जरूरत नहीं है. What percent of day? What percent of day. a day is The time duration. day is the Time duration. time duration 3 hours. 3 Of hours. 3 hours. Right? So what कीजिएगा, let x percent of Day. a day, x percent of a day is equal to 3 hours, right? But we can say that the quantities are of different units. This is in the form of day and this is in the form of hours. What our first step is to X percent of convert 24 hours. both the quantities in same unit. X So 3 percent hours की जगह हम day को convert कर लेंगे X x percent percent of 24 of hours. 24 hours is equal to 3 3 hours. Clear? Yes. Now x upon 100 into 24 is equal to 3. Yes. So x is equal to, I told you the positions, new positions of the digits when we bring them after equal to sign. ठीक है? So we are bringing x is equal to directly कर लेते हैं. तो the position of denominator will be numerator. जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, and whatever is in numerator that will go in denominator. Clear? So 3 8 जा 24 and इसको कैलकुलेट करें तो 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 and 4 25 upon 2, 25 upon gives you 2, gives you 12.5%. Clear? Either we can write in the fraction. अब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो उसको और हम थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे और अच्छा लगेगा. ठीक है? और हमने डायरेक्टली इसको डेसिमल में कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज हमारी वही 7 चलेगी. बताओ भाई, सेट क्वेश्चन नंबर 2. About 67% of a human body's total weight is water. ठीक है. If Aparna weighs 70 kilogram, how much of her weight is water? ठीक है. Yes. तो
हाँ, क्वेश्चन क्या है, अपर्णाज वेट कितना है? 70 पहले तो लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई 67% ऑफ बॉडीज वेट है ना, ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर, ठीक है। 67% ऑफ बॉडीज वेट इज वाटर, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है अपर्णा ही है ना, अपर्णास क्या दिया, वेट, क्या कह रहा है, वेट ऑफ अपर्णास वेट अपर्णास वेट WEIGST इज इक्वल टू कितना है, 70 ग्राम, हाँ 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम। अब 70 किलोग्राम क्या है, अपर्णा का वेट है, तो ये तो बॉडी का ही वेट है ना, अपर्णा की बॉडी का ही वेट है भैया। तो ये अपर्णास वेट नहीं, अपर्णास बॉडी वेट ऑफ अपर्णास बॉडी यू कैन से, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को ले लें क्योंकि बॉडी के फॉर्म में लिया हुआ है, WEI वेट ऑफ अपर्णास बॉडी इज इक्वल टू 70 ग्राम, ठीक है। अब इसमें पानी कितना है, इतने परसेंट, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अपर्णास बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 67% ऑफ 70, ठीक है। अपर्णा की बॉडी का वेट कितना है, 70। अब इसमें 67% इसमें वाटर है, तो निकाल लेते हैं। वाटर अपॉन 100 इंटू 70 गिव्स यू हाउ मच, जरा कैलकुलेट करो बाबू, 7 7 जा 49, 9 आएगा, 7 42 और 4 46 अपॉन 10। तो कितना आ जाएगा पानी, कितना वेट आ जाएगा वाटर का, कितना वेट आ जाएगा, 46.9 kg। दिस इज अवर आंसर। मतलब जो अपर्णा की बॉडी में है कितना पानी है, 46.9 किलोग्राम, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा नहीं, तो ये रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। A person's salary increases from 7,200 to 8,100 rupees. What ठीक is है। the percentage increase in his salary? यस, अब इंक्रीज वाला हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज इंक्रीज वाज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल सैलरी Yes, इनटू 100, 100 पढ़ा था फॉर्मूला। तो पहले तो हम क्या स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 7,200 ओरिजिनल या बेसिक सैलरी कितनी थी, 7,200 सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 7,200 7,200, ठीक है। अब इंक्रीज हो क्या हुआ, इंक्रीज हुई ना सैलरी, सो इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई, 8,100 इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज होने के बाद में सैलरी कितनी हो गई, 8,100 ठीक है। difference. सैलरी आफ्टर इंक्रीज कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्टेटमेंट और थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट बना लेते हैं, सैलरी आफ्टर इंक्रीज। एक जब बढ़ा सैलरी, बढ़ के सैलरी कितनी हो गई, 8,100। सो इंक्रीज इन सैलरी, कितनी हुई सैलरी में इंक्रीज, 8,100 minus 7,200 gives you rupees 900, जो भाई। Yes.
अब फॉर्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल सैलरी इंटू 100। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे भी मत जाना, अंग्रेजी वैसे ही बहुत कमजोर है, हिंदी मीडियम पढ़े हुए। समझ आया? तुम तो अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हो कॉन्वेंट में, हम लोग कहाँ पढ़े थे? सुभाष इंटर कॉलेज बांगरमऊ, नॉट लखनऊ। खैर एनीवेज, इंक्रीज कितनी है 900 अपॉन ओरिजिनल सैलरी कितनी है 7200। जरा कैलकुलेशन जल्दी से बताओ कितना आएगा? 900 by 7200 into 100. कितना आएगा? आंसर वही आएगा 100 by जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। 25 by 2. हाँ, क्लियर? डेसिमल में निकाल सकते हैं उससे। 25 by 2 लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसको और थोड़ा सा लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A fruit seller had some apples. वो भी देखते रहो। A fruit seller had some apples. हाँ He हाँ sells 40% of apples and still has 420 apples. हाँ, How many apples did he originally have? तो कितना है? उसने कितने एप्पल भेज दिए? 40%. 40%। जितने भी एप्पल थे उसके उसने 40% एप्पल्स बेच दिए। ठीक है, और जो उसके पास एप्पल बचे वो कितने बचे? 420 एप्पल्स उसके पास बच गए। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्या इसमें दिख नहीं रहा? अच्छा, नोट कर रहे हो? ये सब बता दो, ये सब शर्म आ रही बोलने में क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 ऑफ 7B। तो पता क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं, उसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट original द number of टोटल number of apples नंबर ऑफ apples एप्पल्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एप्पल सोल्ड इज इक्वल टू कितना है? 40%। yes ठीक है, सो सोल्ड एप्पल 40% है, तो लेफ्ट एप्पल कितने हो जाएंगे? 60%. लेफ्ट एप्पल इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%. हम लोग 60। भाई हमारा जो बेस क्या है वो 100 ही है, परसेंटेज का बेस क्या है 100। अब लेफ्ट एप्पल्स दिए भी हैं, लेफ्ट एप्पल्स गिवन लेफ्ट एप्पल्स कितने हैं? 420. 420 दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एप्पल्स 60% है, टोटल एप्पल इतने हैं, तो क्या हो जाएगा? 60% ऑफ टोटल एप्पल इज इक्वल टू, यही तो इक्वेशन बनेगी। 60% ऑफ जो लेफ्ट एप्पल है वो परसेंटेज 60 है उसका, 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420, 60 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 420 gives you x is equal to the position, you know where? 420 into 100 by 60. by 60। Clear? 0 cancel. इसको काट देते हैं। 6 7 6 7 42. क्या होता है?
700 और हमारे apples. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए 700. Yes. सो टोटल नंबर ऑफ apples is equal to 700. This is the answer. Clear? I've done before. I just can't. आप करेक्ट इससे मैच कर लो, हम क्या देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, हम क्यों देखेंगे उसको. नंबर ऑफ हमारा जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. x इज इक्वल टू 700 पे नहीं छोड़ना चाहिए. हमें जो आंसर पूछा जा रहा है उस फॉर्म में आंसर को लिखना भी है. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. 10. 16 minutes. 16 मिनट हो गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं. Okay. So, in next session, we'll take up some more questions. So, thank you.